हेडलाइंस के बाद आपको खबर दें, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास किसी सूरत एटमी हथियार नहीं होना चाहिए। दुनिया में किसी पागल को एटमी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। फ्लोरिडा में खिताब में ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास एटमी हथियार होते तो इसराइल, मशरिक़ वस्ती और यूरोप के टुकड़े हो जाते। ईरानी रजीम ने हफ्तों में 42,000 हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन को कत्ल किया था। आज ईरान के पास न लीडर है, न एयरफोर्स है, न ही नेवी। उन्होंने मजीद कहा कि जंग जल्दी ख़त्म नहीं करेंगे। जंग ख़त्म करें और ईरानी रजीम दोबारा खड़ी हो जाए, ऐसा नहीं होने देंगे। आबनाया हुर्मुज़ में 400 जहाज़ खड़े हैं। बाहर आए तो तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। Have to take a little journey down to a beautiful country known as Iran, and we have to make sure that they don't have a nuclear weapon. We stopped them with the B-2 bombers. If we didn't do that, we would have had a nuclear weapon. Israel would have been blown to pieces. The Middle East would have been blown to pieces. I think Europe would have been blown to pieces. You know, their leaders are gone. The first set is gone. The second set is gone. Khomeini was gone. And they were pretty evil people. Not pretty evil. They were evil. They killed 42,000 protesters. 42,000! And in a period of 2 weeks, they killed 42,000 protesters. But we had to get this done, and we're really doing well. You know, we're in a war because I think you would agree we cannot let lunatics have a nuclear weapon. Do you agree? It's all locked up in the Strait of Hormuz, a beautiful place. It's, I think they have close to 400 ships loaded up with oil. When all of that gets released, when all of that comes out, these people tried to hold up our country for years and years, the world, by closing up the Strait of Hormuz. When all of that stuff comes out, you're going to see prices dropping on gasoline like you've never seen, and all of that, electricity, gasoline, anything having to do with energy. Grocery prices are way. ईरान के साथ जंग खत्म हो गई। व्हाइट हाउस ने कांग्रेस को आगाह कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने बताया कि मशरिक़ वस्ती में अमरीकी अफवाज की मौजूदगी के बावजूद जंग खत्म हो चुकी। वॉर पावर्स से मुताल्लिक़ कांग्रेस की मुकर्रर डेडलाइन का आज आखिरी दिन था। ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में वॉर पावर्स के हुक्म को गैर आईनी करार दिया था। ईरान के साथ जंग खत्म हो गई। व्हाइट हाउस ने कांग्रेस को आगाह कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने बताया कि मशरिक़ वस्ती में अमरीकी अफवाज की मौजूदगी के बावजूद जंग खत्म हो चुकी। वॉर पावर्स से मुताल्लिक़ कांग्रेस की मुकर्रर डेडलाइन का आज आखिरी दिन था। ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में वॉर पावर्स के हुक्म को गैर आईनी करार दिया था। जो मांग रहा है अमेरिका उस पर राजी नहीं हो सकता। ईरान की भेजी गई नई तजावीज़ से मुतमईन नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, ईरानी क़यादत डील चाहती है लेकिन वो खुद इंतशार का शिकार है। हम बातचीत के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ईरान ने कुछ कदम आगे बढ़ाए लेकिन मुझे यकीन नहीं मुआहदे तक पहुँच पाएंगे। सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफों के पुल बांध दिए। Had a conversation with Iran. Let's see what happens. Iran wants to make a deal, but I would say that I am not happy. They're asking for things that I can't agree to. Their leadership is very disjointed. They come back, one says one thing, one says another. They're very confused. It's got 2 to 3 groups, maybe 4. And then a new group of people come in. They don't know who their leaders are. Are you considering new strikes on Iran? Why would I tell you that? We have great respect for Pakistan and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us, but the trip is a very long one, and we're doing everything in terms of negotiating right now, telephonically. They've made strides, but I'm not sure if they ever get there. ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ़। तेहरान ने जंग के खात्मे और मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ अमरीका को अरसाल कर दी है। ईरानी मीडिया का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए नया फार्मूला गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तानी सालिसों को पेश किया गया। ईरानी हुकाम का कहना है जंग का खात्मा पायदार अमन मुज़ाकरात में तेहरान की तरजीह है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है ईरान और अमरीका के दरमियान पाकिस्तान बाकायदा सालिस का किरदार अदा कर रहा है। इस मामले में बहुत से ममालिक मदद के लिए तैयार हैं लेकिन मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। अमरीका से मुज़ाकरात में फ़ौरी नताइज की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करना हकीकत पसंदी नहीं। किसी को मुखालिफिन के बयानात और ट्वीट्स पर एक तरफ़ा एतबार नहीं करना चाहिए। अगर मुज़ाकरात का फ़ैसला होता है तो इस बारे में बाज़ाब्ता तौर पर आगाह करेंगे। ईरान और अमरीका में पाकिस्तान की मेज़बानी में मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद अब तक दूसरा राउंड नहीं हो सका। अमरीका ने ईरान को मुआहदे के लिए दिए गए मुतालबात में जौहरी मामला दोबारा शामिल कर लिया। सदर ट्रंप के मुशीर स्टीव विटकोफ ने मुआहदे में तरमीम ईरान को भिजवाई है।
एक्सियोस की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान को मुज़ाकरात के दौरान अफज़ूदा यूरेनियम मुंतकिल न करने का वादा करना होगा। ईरान यकीन दहानी कराए जौहरी तनसीबात पर कोई सरगर्मी शुरू नहीं करेगा। CNN की रिपोर्ट में कहा गया, ट्रंप की टीम ने ईरान की बंदरगाहों पर नाकाबंदी को वसअत देने का फैसला कर लिया। ईरानी बंदरगाह की नाकाबंदी के साथ अब नया हुर्मुज़ की तवील मुद्दती बंदिश भी शामिल है। वाशिंगटन धमकियां देना छोड़े और तोसी पसंदाना तर्ज अमल तब्दील करे तो सफारतकारी के लिए तैयार है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि तुर्की, कतर, सऊदी अरब, मिस्र, इराक और आज़रबाईजान के सामने अपना मौक़िफ़ रखा। अमरीका अपने रवैया और तर्ज अमल पर नज़रसानी करे और इश्तिआल अंगेज़ इक़दाम तर्क करे तो सफारतकारी के लिए तैयार है। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल तौर पर चौकस है। ईरानी अफ़वाज किसी भी ख़तरे या जारहियत के खिलाफ मुल्की दिफा के लिए तैयार है। ईरान ने दुश्मनों के साथ फौजी मार्के में अपनी तरक्की बढ़तरी को दुनिया पर फिर साबित कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई को यौम मजदूर पर पैगाम, कहा अब दुश्मनों को मुआशी सकाफती जिहाद के मैदान में भी मायूसी और शिकस्त होगी। ईरानी अवाम मुकामी तौर पर तैयार, अशिया के इस्तेमाल को तरजीह दें। ईरान में कारोबारी अफराद अपना नुकसान होने पर किसी को मुलाजिमत से निकालने से गुरेज करें। यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे, ईरान के साथ जंग खत्म हो गई। व्हाइट हाउस ने कांग्रेस को आगाह कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अफवाज की मौजूदगी के बावजूद जंग खत्म हो चुकी। वॉर पावर से मुतालिक कांग्रेस की मुकर्रर डेडलाइन का आज आखिरी दिन था। ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में वॉर पावर्स के हुक्म को गैर आईनी करार दिया था। ईरान के साथ जंग खत्म हो गई, व्हाइट हाउस ने कांग्रेस को आगाह कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अफवाज की मौजूदगी के बावजूद जंग खत्म हो चुकी। ईरान से जंग के दौरान अमरीकी फौजी साजो सामान का अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। अल जजीरा की रिपोर्ट में सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के हवाले से बताया गया, अमेरिका को इंतहाई जदीद जंगी तैयारों, रेडार सिस्टम्स और दीगर फौजी आलात की तबाही से $3 अरब के करीब नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्ट में बताया गया F-15 जंगी तैयारे, निगरानी के औकास तैयारे, KC-135 ईंधन भरने वाले तैयारे और MQ-9 रिपेयर ड्रोन समेत मुतादिद कीमती असासे तबाह हुए। इन कीमती असासों की तबाही के मकामात और तारीख की भी निशानदेही की गई है। आबनाया हुर्मुज़ से मसनूई जहानत के जरिए बारूदी सुरंगें साफ करने की तैयारी। अमरीकी बहरिया ने सैन फ्रांसिस्को की मसनूई जहानत की कंपनी डोमेनो से $10 करोड़ का मुआहदा कर लिया। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अमरीकी बहरिया तैरने वाले ड्रोन से ईरानी बारूदी सुरंगें तलाश करेगी। डोमेनो से पहले AI ड्रोन्स को नई किस्म की बारूदी सुरंग पहुंचाना सिखाने में 6 माह लगते थे। डोमेनो की टेक्नोलॉजी से ये काम चंद दिनों में हो जाएगा। वाशिंगटन धमकियां देना छोड़े और तौसी पसंदाना तर्ज अमल तब्दील करे तो सिफारतकारी के लिए तैयार है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, तुर्किया, कतर, सऊदी अरब, मिस्र, इराक और आज़रबाईजान के सामने अपना मौक़िफ़ रखा है। अमरीका अपने रवैये और तर्ज अमल पर नज़रसानी करे और इश्तिआल अंगेज़ इक़दाम तर्क करे तो सिफारतकारी के लिए तैयार हैं। ईरान की मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर चौकस है। ईरानी अफवाज किसी भी खतरे या जारहियत के खिलाफ मुल्की दिफा के लिए तैयार हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी के नतीजे में लड़ाई खत्म हो चुकी है। रॉयटर्स ने ट्रंप इंतजामिया के हवाले से बताया, वॉर पावर्स एक्ट के हवाले से 28 फरवरी को शुरू होने वाली लड़ाई 60 रोज़ा डेडलाइन से पहले ख़त्म हो चुकी है। जंगबंदी के बाद से अमरीकी और ईरानी मुसल्लह अफवाज के दरमियान किसी किस्म की लड़ाई नहीं हुई। वॉर पावर्स से मुतालिक कांग्रेस की मुकर्ररा डेडलाइन आज ख़त्म हो रही है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप के पास आज तक का वक्त है कि वो ईरान से जंग ख़त्म करें या फिर इसे जारी रखने के लिए कांग्रेस से रुजू करें और इस जंग की वजूहात पेश करें। यौम मजदूर पर सऊदी अरब ने पाकिस्तानी मजदूरों का दिल से शुक्रिया अदा किया है। स्पेशल वीडियो एक्स पर शेयर की गई। सऊदी अरब में काम करने वाले तमाम पाकिस्तानी मजदूरों को दिल से शुक्रिया कहा गया। वीडियो में बताया गया, सऊदी अरब में काम करने वाले तमाम मजदूर हमारे दोस्त हैं। आपकी कुर्बानियों से हम आगे बढ़ते हैं और आपके खुलूस से हम कामयाब होते हैं। लेबर डे पर हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।